Good morning, children. Hope you all will be fine. Today we are going to study our sixth poem from the book Flamingo, Aunt Jennifer's Tigers. Children, before beginning this poem, what we have to bear in mind two things, that is symbolism, and also open all the windows of your mind for having a soar of imagination. Okay. Aunt Jennifer's Tigers by Adrian Rich. And this poem, Aunt Jennifer's Tigers, addresses the constraints of married life, oppressions. I'm not saying operation, I'm saying oppressions. OPRESSIONS. Oppressions means अत्याचार, मैरिड लाइफ के अत्याचार या जो उसकी रोक टोक होती है, जो कर्टेलिंग ऑफ फ्रीडम होता है, ऑल दोज थिंग्स हेयर. योर प्रोटैगनिस्ट is Aunt Jennifer. Right from the beginning, Aunt Jennifer's Tigers. What will you notice? That symbolism plus imagery. It's a very good combination of symbolism and imagery. Right from the beginning, you will notice it. Second thing special about this poem is ironical element. The poem is overfilled with various types of ironies. So this poem shows you, it gives you a visual imagery about a woman who is undergoing tortures, constraints and oppressions of married life. Second, this poem is enriched by visual imagery. Visual imagery. Imagery क्या होती है कि about the specification about the scene. So you would, as your poet cannot give you a painting, so through the words your poet tries her or his level best to produce before your mind the image exact he or she wants to give you. In this poem also, Aunt Jennifer symbolizes those women who are undergoing constraints of married life, so much tortured by their husbands, or they are the victim of male dominant society. Tigers, see, not one tiger, this is in plural. Tigers are the title of your poem. Tigers. So tigers are the creation of Aunt Jennifer. She used to, now next question arises, what she used to do, what does this mean? This tiger mean, is this painting or any other art? No, this is embroidery. She used to embroider these tigers in the pen. Now the third question, where does she do this and why, and this embroidery? General class used to do this embroidery on canvas. She is doing this embroidery on panel. She had maintained the galleries. What does this show you? This shows you the richly state of Aunt Jennifer, because the high class society, the wealthy society, they used to put their the creations in the panels. They used to maintain the galleries. That is why. So next thing about Aunt Jennifer, we come to know that she belongs to rich class. Her husband is the wealthy person, and then you will get many other examples to show that she belongs to a rich family, rich background. That is, next words you will notice, massive weight of wedding band. वेडिंग बैंड क्या है? मैरिड वेडिंग रिंग है. मैसिव वेट क्या है? अगर हैवी रिंग हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत ही गोल्ड है, बहुत ही डायमंड है, बहुत ही ज़्यादा स्टडेड विथ सो मैनी प्रेशियस जेम्स. तो दैट इज़ द हैवी वेट ऑफ वेडिंग बैंड. ये भी आपको सिम्बलाइज कर रहा है रिच स्टेट ऑफ आंट जेनिफर. देन आप देखेंगे कि जनरल क्लास, जो एम्ब्रॉयडरी करने की जो नीडल होती है, एवरीबडी यूज़ दैट आयरन नीडल, वो लोहे वाली छोटी सी नीडल होती है, शार्प वाली, वो नीडल यूज़ करते हैं. बट आंट जेनिफर इज़ यूजिंग आइवरी नीडल. आइवरी very light weighted and also very costly. Ivory very costly, very expensive and very light needle. So this also symbolizes her richly state, that her husband. So what is the problem? Why Aunt Jennifer is why Aunt Jennifer is so piteous, so miserable,
and many lines are so nervous. What is the problem? The problem is this बेटा, that उसको सब कुछ दिया हुआ है, उसको एक गुड़िया बना के रखा हुआ है कि बाहर क्या दिखता है, आउटसाइड वर्ल्ड कुछ और है और इनसाइड से जो आंट जेनिफर है वो कुछ और है। आउटसाइड में वो कैसी दिखती है? वो दिखती है कि बहुत ही खुश है, बहुत ही अपनी वेल्दी फैमिली को एंजॉय कर रही है। बट इफ़ समबडी just go through inside Aunt Jennifer, she is very sad, she is very afraid of her husband's tortures, etc. The limit crosses. अब कैसे आपको दिखाएं कि उसकी टॉर्चर्स, उसकी ऑपरेशंस की लिमिट्स क्या हो चुकी है, कैसे आपको दिखाएं? तो पोएट क्या कर रहा है, वो आपको एक सेंटेंस बताएगा। अच्छा, वन थिंग एवरीबडी नोज इट कि एटलीस्ट डेथ के बाद तो हर तरह के पेन से मुक्ति मिल जाती है ना। But your protagonist, Aunt Jennifer, is not getting relief. Even after her death, she will be victimized of her husband's tortures and oppressions. How can we see that? Because only words are here, no picture is here. How can we see this thing? We can see this by, even after death, her hands are still fluttering, still shivering. Why shivering? Because of the nervousness, because of the pain. So why hands are shivering? Because of this wedding ring that is gifted by her husband. Her weight, she, even after death, when body becomes lifeless, even that time her hands are shivering because her hands are indicating that weight of the wedding bands. तो मरने के बाद भी जो हॉरर आपको हॉन्ट करता है, तो वो रियली बहुत ही वो हॉरर कितना डीप होगा वो आप समझ सकते हैं। जैसे कोई आप बहुत ही हॉरिबल ड्रीम देखते हैं, उठने के बाद घंटे 2 घंटे आप उस ड्रीम को भुला नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ द हॉरर, इट वॉज सो हॉन्टिंग दैट यू आर अनेबल टू फॉरगेट दैट। सेम थिंग इज़ हियर, इवन आफ्टर ड्रीम तो समझ सकते हैं आपकी अनकॉन्शियस फॉर 1 2 3 आवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? डेथ तो परमानेंट अनकॉन्शियस हो चुकी, अब क्यों उसका हाथ फ्लटर कर रहा है? दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द टॉर्चर्स डन बाय हर हस्बैंड. Now, we have come to, we said too much about Aunt Jennifer. Now listen about her tigers. It's a contrast. So you have noticed symbolism, you have noticed irony, now you are going to note contrast. Contrast between Aunt Jennifer and her tigers. अगर कोई डरा हुआ व्यक्ति है तो जो उसका क्रिएशन होगा वो क्या होगा? क्या वो भी डरा हुआ होगा? नहीं. अगर उसके मन में, उसके अंदर, जैसे कोई भी काम आप कॉन्शियसली नहीं कर पाते तो अनकॉन्शियसली आप कहीं ना कहीं मौका मिलते उस काम को मिनटों में कर देते हैं. सेम थिंग आंट जेनिफर, इनसाइड आंट जेनिफर वॉज वेरी ब्रेव, वॉज फियरलेस, वॉज अनअफ्रेड ऑफ मेन सोसाइटी, बट आउटसाइड वॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हर इनसाइड आंट जेनिफर. तो जो इनसाइड जब भी किसी व्यक्ति का क्रिएशन होता है वो उसकी इनर आर्ट होती है, वो उसकी जो कुछ वो समाज सोसाइटी में एक्टिवली नहीं कर पाता है वो फ्रॉम इनसाइड करता है. तो जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैं वो सिम्बलाइज आंट जेनिफर्स टाइगर्स सिम्बलाइजेस व्हाट सिम्बलाइजेस? दे सिम्बलाइज, देखिए आपको हम इसको दिखाते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स सिम्बलाइज फियरलेसनेस, dominance, elegance, sleek, chivalric, certainty, confidence, etc. The color is noticed here. Yellow, on the yellow base, brown strips are there. टाइगर्स के बॉडी का जो कलर्स होता है. तो अब कलर की क्या सिंबॉलिज्म है ये भी आप समझ लीजिए. क्यों कलर्स को अगर ना बताते, कलर एवरीबडी नोज कि ये टाइगर्स कैसे होते हैं, तो अगर वो कलर्स नहीं भी बताएंगे तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन मतलब है कलर्स का. ऑलवेज ब्राइट येलो कलर सिम्बलाइजेज एनर्जी एंड विगरस पावर्स. देन ग्रीन फॉरेस्ट बताया. ग्रीन क्यों बताया? एवरीबडी नोज कि फॉरेस्ट ग्रीन होता है. ग्रीन क्यों बताया? बिकॉज जस्ट टू शो द फ्रेशनेस, जस्ट टू शो the energy, the colors of the nature, everything very fresh. So this is contrast of Aunt Jennifer's personality, that is her creations. Now I think many things I have made clear. कुछ शब्द वर्ड्स का आप बहुत ध्यान रखिएगा. यहाँ पे ये बहुत कुछ कहेंगे. हमने आपको एक रफ स्ट्रक्चर दे दिया है. अब इसमें आप इन चीज़ों को देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं. देखिए आप इन चीज़ों को, विजुअल इमेजरी इसमें बताई गई है.
और आंट जेनिफर्स टाइगर्स की क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जो हम आपको बोल के भी बताएंगे और आप इससे भी समझते जाइएगा। कॉपी पे लिखते चलिए। Now I am going to start this poem. Many things I have made clear, but one thing, symbolism, irony, contrast, इन चीज़ और इमेजरी, विजुअल इमेजरी, इन चीज़ों को पहले अपनी सारी विंडोज़ माइंड की इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन कर लीजिए। ओके। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. The first line. Aunt Jennifer के जो टाइगर्स हैं, prance, parade with grace. Prance means parade with grace across a screen. Across a screen शो कर रहा है एम्ब्रॉयड्री. The creation of Aunt Jennifer that is reflected in embroidery फॉर्म ऑन द स्क्रीन. तो स्क्रीन को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि ये बता रहा है कि रिच क्लास को बिलोंग करती है. जनरल क्लास कैनवास पे एम्ब्रॉयडरी करेगा या कोई क्लॉथ पे करेगा, बट जो रिच क्लास है वो स्क्रीन पे करेगा, पैनल पे करेगा और उनकी गैलरीज भी मेंटेन रहेंगी. ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. सेकेंड लाइन, ब्राइट टोपैज दैट इज़ द कलर ऑफ टाइगर्स. येलो बेस. टोपैज क्या होता है? येलो, पुखराज. टोपैज ब्राइट टोपैज. और डेनिजन्स हो गया रेजिडेंट्स ऑफ. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हो गया फॉरेस्ट. तो ग्रीन कलर और ब्राइट टोपैज, ये जो दो कलर्स आपको हैं, ये कलर्स यूज़ किए गए हैं जस्ट टू शो द वाइटैलिटी, जस्ट टू शो द विग्रस state, just to show the bright colors, just to show the optimism, just to show the fearlessness. तो ये सारी क्वालिटीज़ किसकी होती हैं? टाइगर की होती हैं. ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. फॉरेस्ट का राजा, किंगली स्टेट ऑफ टाइगर्स. दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. फिर एक कंट्रास्ट लाइन आपके पास आ गई. टिल नाउ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट आंट जेनिफर. Right from the beginning you are seeing the features and characteristics of tigers. They don't fear the men beneath the tree. Beneath the tree, the men who used to come for many work to in the forest. Word of green का meaning है forest. फॉरेस्ट के वो किंग हैं, वो इवन वो मेन से भी डरते नहीं हैं. सो दे आर सो डोमिनेटिंग, दे आर सो थ्रेटनिंग दैट दे हैव नो फियर इवन ऑफ men. They don't fear the men beneath the tree. In contrast to their master. किसने इनको एम्ब्रॉयडरी इनकी की है? आंट जेनिफर ने. तो नेचुरली वो इनकी मास्टर हो गई. तो इन कंट्रास्ट टू देयर मास्टर आंट जेनिफर, दे आर ऑपोजिट टू हर नेचर. जितना वो डरती है मेन वर्ड से, मेन डोमिनेंस से, उतना ही ये लोग फियरलेस हैं और उतना ही किंग हैं वो लोग फॉरेस्ट के. दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी. पेस, parade with grace. Pace, parade with grace. So one thing more about Aunt Jennifer's tigers, they are not cool ठंडे tigers नहीं है कि शांत बैठे हुए हैं. No, they are prancing tigers. Prancing, attacking tigers. The tigers in motion. They pace in sleek chivalric. Children, ये 3 words आप नोट कीजिए. Sleek, chivalric, certainty. स्लीक हो गया एलिगेंट, शिवैलरिक हो गया ब्रेव, सर्टेनिटी हो गया कॉन्फिडेंट. तो अगर शिवैलरिक सर्टेनिटी देखेंगे तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एलिट्रेशन. स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी शो कर रहा है टाइगर के फीचर्स को. क्या फीचर्स वो हो गए? ब्रेवरी, फियरलेसनेस, एलिगेंस. So in the first stanza, what you have noticed? You have noticed you have come to know about the qualities of Aunt Jennifer's tigers, like note it down: prancing, elegant, proud, fearless, pacing, dominant and suppressing world of men. दबा के रखते हैं. जितना वो डरती है Aunt Jennifer men से, men के से डोमिनेंट होती है, जिससे जितना वो गाइड होती है उतने ही ये men को दबा के रखते हैं. तो सारा बदला आंट जेनिफर के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं उसके हस्बैंड की साइड से, उसके टाइगर्स उतना ही बदला लेते हैं. उतनी रिवेंजफुल हैं. क्यों रिवेंजफुल हैं? किसने बनाए हैं? आंट जेनिफर ने बनाए हैं. तो इनसाइड हर शी इज़ लाइक दैट. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Aunt Jennifer की जो fingers हैं, when she is doing embroidery through her wool, she wore a glove. ग्लव्स पहने हुए हैं उसने, और जब वो ग्लव्स के अंदर से वो जो नीडल है वो खींच रही है, बिकॉज शी बिलोंग्स टू रिच क्लास. ऐसे सिंपली हम लोग की तरह उसने नीडल नहीं खींची, ग्लव्स पहने हुए हैं.
थ्रू हर वूल, वूल वर्ड जो है वो आयरॉनिकल है, इसमें टू मीनिंग्स आ रहे हैं, एक तो ग्लव्स के लिए वूल आ रहा है और एक आ रहा है इमेजिनेशन के लिए, डेलिकेसी के लिए आ रहा है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, बिगनिंग में हमने आपको बताया था कि जो आंट जेनिफर है वो आइवरी नीडल, हाथी दांत की लाइट वेटेड जो सुई है उससे एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो उसको भी नहीं खींच पा रही है। क्यों नहीं खींच पा रही है? बिकॉज लैक ऑफ स्ट्रेंथ, lack of energy. She is so nervous that she is not able to pull even the ivory needle, and her hands जो उसके जो विजिबल हो रहे हैं, जो फ्लटरिंग हैंड्स हैं उसके वो विजिबल हो रहे हैं जब वो नीडल को पुल कर रही है। इवन ग्लव्स जो हैं वो भी उसको छुपा नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब है टॉर्चर्स की लिमिट इतनी क्रॉस हो गई है कि अब वो उसको कितना भी छुपाना चाह रही है, लेकिन वो उसकी जो नर्वसनेस है, जो उसके टॉर्चर्स की जो लिमिट क्रॉस लिमिट हो रही है, वो छुप नहीं पा रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैन सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मैसिव वेट, हैवी वेट, हैवी वेट में दो मीनिंग्स हैं, अगेन आयरनी है, इट इज़ हैविंग टू मीनिंग्स। आयरनी जो आउटर मीनिंग है, जो लिटरेरी मीनिंग है वो है गोल्ड स्टार्टेड, डायमंड स्टार्टेड, हैवी वेटेड रिंग, वेडिंग रिंग ऑफ आंट जेनिफर। एंड सेकेंड मीनिंग है हैवी वेट का मीनिंग है हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड गोल होता है, बैंड गोल होता है, तो एक तो रिंग का जो सर्कल होता है वो गोल है, एंड सेकेंड थिंग है शैकल्स ऑफ मैरिड लाइफ। कंस्ट्रेंट्स गोल होते हैं, हथकड़ियाँ गोल होती हैं, तो शैकल्स ऑफ मैरिड लाइफ जो इंसान की जो फ्रीडम होती है उसे कर्टेल कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना बर्डन कर देते हैं कि कोई फ्रीली ब्रीथ नहीं कर सकता है। सिट्स हैवली, सिट्स हैवली, बैठी हुई है रिंग उसके फिंगर पे, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब है कि कैसे भी चाह के वो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से छुटकारा नहीं पा सकती है, जो उसके हस्बैंड ने उसको सप्रेस करके रखा है, जो कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिड लाइफ है वो अनबेरेबल हो रहे हैं, चाह के भी वो इनसे बाहर नहीं निकल सकती है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो बिल्कुल चिपक के, बिल्कुल टाइटली दैट हैव, जो वेडिंग बैंड है, दो दो कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैरिड लाइफ है, वो उसकी फिंगर या उसकी पर्सनालिटीज़ पे इतनी बैठ गए हैं कि अब वो वहाँ से रिमूव नहीं हो रहे हैं। अब तो थर्ड स्टैंडा, यहाँ पे तो बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई। एटलीस्ट यू कैन थिंक इवन आफ्टर डेथ वन कैन गेट रिड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टॉर्मेंटेशंस, all types of tortures, but this Aunt Jennifer, it's so ironical that she is not getting rid of these tortures of married life, uh, ill behavior, maltreatment given by her husband. Why she is not able to get rid of that? Just see in this stanza, when aunt is dead her terrified hands will lie. When aunt is dead, children, you have noticed that right from the beginning your poet is saying Aunt Jennifer, Aunt Jennifer. Why she said aunt only? Why? Because after death Jennifer will be deducted, word Jennifer or the name of husband will be deleted from her name. She will remain only aunt. But even after remaining aunt, she is not going to be free. Aunt is dead, her terrified hands will lie. मरने के बाद भी terrified hands, फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे, जिसमें कि हैंड्स के ऊपर टेरिफाइड होने की जो फ्रेज है, जो एडजेक्टिव है, वो हैंड्स के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ट्रांसफर्ड हैंड्स में टेरिफाइड हैंड्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। विद ही स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। आंट इज़ डेड। अब तो सोचिए कि सारे टॉर्चर्स, सारे टॉर्मेंटेशंस ख़त्म हो गए। नहीं, इवन मरने के बाद भी उसके जो हाथ पड़े होंगे रिंग्ड, जिसमें वेडिंग रिंग है, वाले जो हाथ पड़े होंगे, वो भी कहानी कहेंगे, सैड स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर्स tortures and tormentations. So notice this word aunt is used here. आंट जेनिफर नहीं यूज़ हुआ, जेनिफर से वो अब हट चुकी है। मतलब मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक हस्बैंड और उन सब चीज़ों से वो डिलीट हो चुके हैं उसके लाइफ से, फिर भी मरने के बाद भी उसके हैंड्स डरे हुए होंगे। वाई? बिकॉज दैट स्टिल दैट रिंग इज़ लाइंग इन हर फिंगर, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियस शी वॉज मास्टर्ड। यहाँ पे बेटा टू मीनिंग्स है। अगेन दिस लाइन इज़ वेरी आयरॉनिकल। स्टिल रिंग्ड, रिंग्ड में टू मीनिंग्स हैं। एक तो एनिमल भी रिंग के बिहाइंड, जब आप सर्कस देखने जाते हो तो बिहाइंड द रिंग एनिमल को ट्रेंड करते हैं, फाइनली मार के, चाबुक लगा के, उसको ट्रेंड करके फिर आपके सामने लाते हैं। तो वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा होता है, बहुत ही टॉर्चर्ड होता है। इसी तरह से स्टिल रिंग्ड हर फिंगर स्टिल रिंग्ड, स्टिल विटनेसिंग
द ऑडियल्स क्या है, ट्रायल्स, विटनेसिंग द ट्रायल्स ऑफ हर मास्टर। मास्टर में भी टू मीनिंग्स है, एक तो सर्कस का मास्टर जो रिंग के बिहाइंड अपने एनिमल को ट्रेंड करता है, मार पीट के परफेक्ट बना के आपके सामने लाता है, तब आप सर्कस देख के बहुत इन्जॉय करते हैं। बट नो बडी सीज दैट what traces are there on the body of the animal. Do ever you take pain? You just see the circus and say bye bye and just leave it. But you have never seen the traces of torture that are done by the master on animals' skins. Same way, she is dead, aunt is dead, but her hands are still telling the story of torments, story of tortures, a story of constraints of married life or the tortures underpass. हर बॉडी अंडर पासेस। स्टिल रिंग, तो रिंग्ड में दो मीनिंग्स हैं, मास्टर्ड में टू मीनिंग्स हैं, टेरिफाइड हैंड्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, और आंट आयरॉनिकल है। आंट जेनिफर नहीं कहा गया, आंट कहा गया बिकॉज जेनिफर का नाम जो है वो अब डिलीट हो गया है डेथ के बाद में। अब तो कम से कम फ्री हो जाए, नहीं अभी भी वो फ्री नहीं है, अभी भी जो वेडिंग बैंड है वो उसके जो टॉर्चर्स और इसके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, मेल डोमिनेंस की स्टोरी बता रहा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on. बेटा will go on को underline कीजिए। Art is immortal. Embroidery that she did on the panels and screen is immortal. भले ही आज की डेट में aunt Jennifer is no more, but the work she created, the embroidery she did, her prancing tigers, her elegant tigers, her confident tigers, that are the real Aunt Jennifer. And in future also, whenever, although Aunt Jennifer is no more today, but in future when somebody sees the embroidery collection of Aunt Jennifer on the canvas, in the panel, in the galleries, they will come to know that the creator was so optimistic, was so good, was so unafraid, was so proud that she created such work, such elegant work, such fearless work of having these tigers. So tigers फ्यूचर में तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट रख लेंगे। इस लाइफ में वो अपनी रिस्पेक्ट नहीं बना पाई, बट आफ्टर डेथ शी इज़ श्योर कि बिकॉज सालों सालों फॉर लॉन्ग टाइम हर आर्ट विल represent Aunt Jennifer. That is why will go on word symbolizes immortality of art. Art will never die. The tigers in the panel that she made will go on prancing. हमेशा वो ऐसे ही अटैकिंग, ऐसे ही फियरलेस, prancing, dominating, एलिगेंट और कॉन्फिडेंट रहेंगे जैसे कि आज की डेट में आंट ने बनाए हैं। बट आंट विल बी नो मोर। डजेंट मैटर। कभी तो उसकी जो ब्रेवरी है वो काम आएगी, कभी तो वो कुछ कर पाएगी, कभी तो कोई उसको समझेगा। कौन समझाएगा? उसके क्रिएशन, उसका आर्ट समझाएगा। सो चिल्ड्रन, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिक चीज़ें सिम्बॉलिज़म, आयरनी, कंट्रास्ट, इनका ध्यान रखिएगा। और आई थिंक इसमें आप समझ लीजिए कि रिच जो वेडिंग बैंड है वो शैकल्स ऑफ स्लेवरी दिखा रहा है, टाइगर्स हैं वो इनर आंट जेनिफर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी है, सिंबल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इमॉर्टेलिटी ऑफ आर्ट, desires, escape of present world, escape of the oppressions and tortures of married life है। तो ये सारे सिम्बल्स हैं, इन कम से कम 8-9 सिम्बल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस इसके लिए मेन चीज़ है आप सिम्बल्स को लर्न कर लीजिए और आपको ये पूरी पोएम वेरी क्लियर हो जाएगी। और आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, हैव अ नाइस डे।